Assalamu alaikum class 7. I am your social studies teacher Ms. Tayyaba Shams. Class, today I am going to give you the brief description of all the contents of your book. So let's jump into it. Open your book and come to the table of contents. Class, we have unit number 1 from ancient to modern world. In this unit we will study about the two ancient Indian empires, that is the Mauryan Empire and the Gupta Empire. We also read about the Persian Empire in this unit. Later on we will study about the medieval ages and the Islamic world. We will also study about the three main dynasties of Muslim, that is the Umayyad dynasty, the Abbasid Caliphate and the Ottoman Turk Empire. Class, we have unit number 2, the Constitution and Citizenship. In this unit we will study about the constitution and its type, that is the supreme document of any country, some rights and responsibilities of citizens, and what is the role of civil society and active citizenship. Unit number 3 is land and life in Asia. In this unit we will study about the land of Asia, the interaction between land and people of Asia, uses and effects of water resources, and the migration and settlement of peoples in different parts of Asia. Next we have unit number 4, demand and supply. In this unit we will study about demand, which basically focuses on consumers, and about the supply, which on the other hand focuses on the producers. Now we have unit number 5, the organization of people in Asia. This chapter deals with the leadership of groups in Asia and how Asian people respond towards challenges and crises. We have last unit, unit number 6, skill development. In this unit we will read about the development of many skills like collaboration skills, which is needed when we work together, and problem solving skills, which is necessary to live a peaceful life in society, and some history skills and some methods of representing data. Class, we have gone through all the contents of the book. Assalamu alaikum class 7. Today we are going to study unit number 1 from ancient to modern world. Class, as I have already given you the introduction of all the units, so we will start with the introduction of the chapter. Class, we have chapter number 1 in this unit, the ancient world India. Okay class, I am going to read the introduction of this chapter. This chapter mainly focuses on rise and fall of the Mauryan Empire. ये चैप्टर मेनली फोकस करता है उरूज और जवाल पे मौर्यन एम्पायर की. यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट द एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म, और आप इसमें जो है वो बुद्धिज़्म के हवाले से भी पढ़ेंगे जो कि एक रिलीजन था. फर्दर मोर, और इसके अलावा यू विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द किंग अशोका एंड हिज पॉलिसीज़. आप जो है वो किंग अशोका और उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से भी पढ़ेंगे. द गुप्ता एम्पायर एंड इन्वेजन्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट आर ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इसके अलावा आप इस चैप्टर में एक और एम्पायर के हवाले से पढ़ेंगे जो कि गुप्ता एम्पायर है, और इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कि ग्रीक इन्वेडर था उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे. ओके क्लास. Class, before starting our chapter, it is necessary for us to understand these abbreviations AD, BC and BCE. क्लास, ये बेसिकली ये एब्रीवेशंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो डेट्स के साथ लिखी हुई नज़र आती है, ईयर्स के साथ लिखी हुई नज़र आती हैं ये एब्रीवेशंस. ठीक है क्लास. अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये जो है वो AD, BC और BCE क्या होते हैं. क्लास, असल में जो हम रोज़मर्रा में जो हम डेट्स या कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कैलेंडर हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर कहलाता है. और ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो है वो चल रहा है. यानी कि अगर आज जो है वो 2020 है, इट मीन्स दैट कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को जो है वो 2020 साल गुजर चुके हैं. आ गई बात समझ में क्लास. यानी ये जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं ये हम बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो ईयर्स हैं हम उनको काउंट कर रहे हैं. आ गई बात समझ में. तो क्लास, ये जो डेट्स जो हम जो है वो रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हम इनके साथ जो है वो AD यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि AD जो है वो असल में किसका एब्रीवेशन है. AD एब्रीवेशन है
एनो डोमिनी। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, ये एनो डोमिनी एक लैटिन फ्रेज है जिसकी मीनिंग है इन द ईयर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जब हम इसमें ईयर्स काउंट कर रहे हैं तो हम उसको जो है वो एनो डोमिनी कहते हैं, और हम इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं AD। यानी जो हम डेट्स, जो भी हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जितने भी ईयर्स के हवाले से हम कोई इवेंट जो है वो लिख रहे होते हैं या हम ईयर या डेट का जिक्र कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ AD यूज़ करते हैं। ठीक है क्लास। नाउ कम टू BC और BCE क्लास, दे बोथ आर सेम टर्म्स, BC एंड BCE क्लास। बेसिकली ये हम उन ईयर्स के साथ लिखते हैं या उन डेट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो ईयर्स हमारे पास आए थे हम उनको जो है वो BC और BCE से शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ BC और BCE किसका एब्रीवेशन है। BC हमारे पास एब्रीवेशन है बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, क्रिस्ट आपको पता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की पैदाइश से पहले के ईयर्स। ठीक है। और अगेन हमारे पास जो है वो BCE बिफोर क्रिश्चियन एरा। अब इससे भी आप समझ गए होंगे कि क्रिश्चियन एरा जो है वो असल में क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब हुई, जब से क्रिश्चियन एरा जो है वो स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले जितनी हमारे पास जो है वो डेट्स हैं, यानी ये सेम टर्म्स हैं, और BC या BCE का मतलब जो है वो हमारे पास जो है वो सेम होता है। आ गई बात समझ में क्लास। अच्छा क्लास, लेकिन एनो डोमिनी और हमारे पास बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्रिश्चियन एरा में हमारे पास जो है वो एक डिफरेंस है। वो ये है कि क्लास जब हम BC या BCE हम यूज़ कर रहे होते हैं और हम ईयर्स को जो है वो नंबर जो है वो कर रहे होते हैं तो हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे होते हैं। ठीक है क्लास। रिवर्स ऑर्डर से मुराद ये है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। क्लास ये जो ईयर था ये हमारा था 1 AD। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो वो ईयर हमारा था 1 AD, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले वाला साल था वो हमारे पास कहलाता है 1 BC। आ गई बात समझ में क्लास। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो पहले वाला साल था वो हमारे पास 1 BC कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप इसको आसानी से इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग चल रही होती है यहाँ पे। ठीक है। हमारे पास पहले जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाला साल 1 BC, फिर उससे जो है वो पहले वाला साल 2 BC। इस तरीके से हमारे पास जो है वो चल रहा होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँ, अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमारी जो है वो डेट जो है वो हम लिखते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से डेट चली, जबकि उससे पहले हमारे पास इस तरीके से डेट चली है 1 2 3 फिर 4 एंड सो ऑन। यानी इसमें हमारे पास रिवर्स, जब हम ईयर्स को नंबर करेंगे तो हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है BC या फिर BCE। ठीक है। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड क्लास। Okay class, now I am going to start our new topic. Okay class, I am going to start our first topic, Mauryan Empire. Chandragupta Maurya was born as the first ruler of the Mauryan Empire. चंद्रगुप्ता मौर्य जो थे वो फर्स्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। ठीक है क्लास। अच्छा, एम्पायर किसे कहते हैं? एम्पायर बेसिकली ऐसी सल्तनत या रियासत को कहते हैं जो कि हमने जो है वो फ़तह करके हासिल की होती है, यानी वहाँ पर बाकायदा लोगों से जो है वो हमने लड़कर जो है वो उस जगह को जो है वो कॉन्कर किया होता है, यानी उस जगह को हमने फ़तह किया होता है। तो ऐसी इस रियासत को जो है वो हम कहते हैं एम्पायर। ठीक है। तो यानी जो मौर्यन एम्पायर था उसके फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्ता थे। The southern part of the kingdom was located on the Ganges river. और इस किंगडम का जो साउदर्न पार्ट था, किंगडम हम सल्तनत को कहते हैं, इस किंगडम का जो साउदर्न पार्ट था वो बेसिकली जो है वो गैंजेस रिवर के जो है वो आसपास नज़र आता था। इट वॉज रूल्ड बाय द नंदा फैमिली। ठीक है क्लास। अच्छा, जब चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपनी एम्पायर की जो है वो बुनियाद रखी, उससे पहले जो है वो यहाँ पे नंदा फैमिली जो है वो हुकूमत किया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्पायर उस स्टेट को कहते हैं जो कि हमने लड़कर हासिल की होती है। चंद्रगुप्ता किल्ड द नंदा किंग।
चंद्रगुप्ता ने क्या किया, वहाँ के जो किंग थे नंदा किंग, उनको क्या किया, मार दिया, किल कर दिया। इन दिस वे ही एक्सपेंडेड मौर्यन एम्पायर, और इस तरह उन्होंने क्या किया, मौर्यन एम्पायर को जो है वो अपनी सल्तनत वहाँ तक वसी की। चंद्रगुप्ता फर्दर एक्सपेंडेड द एम्पायर बाय कॉन्करिंग स्मॉल किंगडम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद जो है वो चंद्रगुप्ता उन्होंने जो है वो फर्दर जो है वो एक्सपेंशन की, यानी अपने एम्पायर को, अपनी सल्तनत को वसी किया, और जो है वो बहुत सारे जो है वो छोटी छोटी सल्तनतों को इंडिया के फतह किया। चंद्रगुप्ता वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसरा reigned 298 तक 272 BC। चंद्रगुप्ता के बाद जो है वो उनके जो बेटे थे बिंदुसरा, वो जो है उन्होंने जो है वो हुकूमत संभाली, ठीक है। अच्छा, बिंदुसरा ने जो है वो 298 से 272 BC तक, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 298 ईयर्स पहले, 298 ईयर्स पहले से लेकर 272 ईयर्स पहले तक जो है वो हुकूमत की। मैं आपको ये टर्म्स जो है वो समझा चुकी हूँ BC। आ गई बात समझ में क्लास? इसके अलावा हमारे पास ही कॉन्टिन्यूड हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन बाय एक्सटेंडिंग मॉडर्न पावर डाउन इनटू सेंट्रल इंडिया। उन्होंने जो है वो अपनी फादर की जो सल्तनत को वसी करने की पॉलिसी थी उसको जो है वो अपनाया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो पूरे सेंट्रल इंडिया में जो है वो इनकी हुकूमत क्या हो गई, कायम हो गई। बिंदुसरा वॉज फॉलोड बाय हिज सन अशोका reigned 272 232 BC। बिंदुसरा के बाद उनके सन अशोका जो है वो उन्होंने हुकूमत संभाली, वो बादशाह बने। अशोका प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल एंड अट्रैक्टिव रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और अशोका ने जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार जो है वो रूलर जो है वो साबित किया, ना सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में एंड इंडीड द होल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जो है वो अशोका जो थे वो एक शानदार जो है वो रूलर बनकर जो है वो साबित हुए। अच्छा क्लास, हम जो है वो मॉडर्न एम्पायर की जो है वो टाइमलाइन जो है वो देख लेते हैं। नाउ क्लास, अब आप जो है वो देख सकते हैं टाइमलाइन के जो मॉडर्न एम्पायर थे उनके जो है वो 3 रूलर्स जो है वो आए थे, और उन्होंने कब से जो है वो कब तक हुकूमत की। यहाँ पर जो हमारे पास ईयर्स गिवन है वो BC में गिवन है, यानी बिफोर क्रिश्चियन एरा में जो है हमारे पास गिवन है। अब आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो हम किस दौर का जो है वो जिक्र कर रहे हैं, किस दौर के एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एम्पायर यानी मॉडर्न एम्पायर जो है वो उस वक्त एग्जिस्ट किया करती थी इंडिया में, सेंट्रल इंडिया पर इनकी हुकूमत थी जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी नहीं हुई थी, यानी तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जो है वो 300 बरस कबल की जो है वो ये एम्पायर है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस जो है वो दौर के हवाले से हम पढ़ रहे थे। क्लास, नाउ कम टू पेज नंबर 3। क्लास, यहाँ पर हमारे पास मॉडर्न एम्पायर का जो है वो मैप मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये एशिया का मैप है पूरा, और इसके अंदर जितना जो है वो पर्पल कलर से हाईलाइट हुआ है, तो ये जो था ये मॉडर्न एम्पायर की हुकूमत थी। यहाँ पर इन इलाकों में जो इलाके यहाँ पर पर्पल कलर से हाईलाइट हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो मॉडर्न एम्पायर की हुकूमत हुआ करती थी। द मैप शोन अबव इज़ ऑफ द मॉडर्न एम्पायर इन 265 BCE, और ये जो मैप आपको शो किया गया है ये बेसिकली जो है वो किस ईयर का है, 265 BCE का। बाय द एंड ऑफ द एम्पायर्स एग्जिस्टेंस मच ऑफ इंडिया वॉज इट्स पार्ट, और जब ये एम्पायर जो है वो एंड हुआ था तो इस वक्त जो है वो बहुत सारा जो इंडिया का इलाका था वो इसका जो है वो पार्ट था, इसका हिस्सा बन चुका था। द साउदर्न टिप ऑफ द पेनिनसुला एंड द राइट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये जो पेनिनसुला है हमारे पास एशिया में, उसका जो साउदर्न टिप था और वो जो कॉन्टिनेंट का जो हमारे राइट पार्ट है वो कम्प्लीटली पार्ट नहीं थे इस डायनेस्टी के, मॉडर्न एम्पायर के कम्प्लीटली पार्ट नहीं थे। दे वर नॉट कम्प्लीट राइवल्स ऑफ द एम्पायर, लेकिन वो उसके दुश्मन भी नहीं थे, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि अगर आसपास के जैसे कुछ इलाके आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मॉरियंस की जो है वो हुकूमत नहीं थी, जो कि पर्पल से हाईलाइट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके जो है वो राइवल्स या दुश्मन जो है वो आसपास मौजूद थे, वो कम्प्लीटली जो है वो उनको कोई खतरा नहीं था, यानी मॉडर्न एम्पायर को उनसे कोई खतरा नहीं था। नॉट ऑल ऑफ द एक्सपेंशन वॉज डन बाय चंद्रगुप्ता, बट देयर वर ऑल्सो कंट्रीब्यूशंस मेड बाय अदर रूलर्स इंक्लूडिंग बिंदुसरा एंड अशोका। ये तमाम जो यहाँ पर हमारे पास मैप में जो नज़र आ रही हैं कंक्वेस्ट, ये सारी की सारी जो है वो चंद्रगुप्ता ने नहीं की, बल्कि उनके बाद जो उनके सन बिंदुसरा और उनके जो ग्रैंड सन अशोका जो किंग बने, तो उन्होंने भी मिलाकर ये सारी जो है वो फतूहात की थी। आ गई बात समझ में क्लास?
अब यहाँ पर हम पेज नंबर 4 पर आ जाइए। पेज नंबर 4 पर हमारे पास जो है वो किंग अशोका जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। किंग अशोका के हवाले से हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चंद्रगुप्ता's grandson अशोका proved to be one of the most remarkable rulers in the history of India। क्लास हमने पेज नंबर 1 पे भी इनके हवाले से पढ़ा था कि ये एक रिमार्केबल रूलर हैं इंडिया की हिस्ट्री में, एंड इंडीड द होल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ना सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में जो है वो एक रिमार्केबल रूलर के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं। आफ्टर अ ब्लडी वॉर अगेंस्ट कलिंगा इन ईस्टर्न इंडिया। क्लास ईस्टर्न इंडिया में एक जगह है कलिंगा, जिनसे जो है वो अशोका ने जो है वो एक बहुत ख़तरनाक जंग लड़ी थी। अशोका रिनाउंस्ड वॉरफेयर एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म। असल में हुआ ये था क्लास के इस जंग को लड़ने के बाद जो है वो अशोका ने जो है वो जंगो जदल से जो है वो हमेशा के लिए जो है वो परहेज़ किया था। उसके बाद जो है वो कभी भी जो है वो उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी और जो है वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे। असल में क्लास ये हुआ था कि जब अशोका ने कलिंगा जो स्टेट था वहाँ के लोगों से जब उन्होंने जो है वो जंग लड़ी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्लड शेड हुआ, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, तो ये देखकर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो दुख हुआ और उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हम अपने एक्सपेंशन के लिए जो है वो कत्लो गारतगरी करें। तो इसलिए उन्होंने जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो ये सोचा था कि अब वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए कोई जंग वगैरह नहीं लड़ेंगे और बल्कि वो जो है वो बुद्धिज़्म उन्होंने जो है वो अपना ली थी। बुद्धिज़्म जो है वो मज़हब को जो वो अपना लिया था। ही डिटरमाइंड दैट ही वुड रेन इन पीस, और उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उन्हें जो है वो जो हुकूमत करनी है वो पीस के साथ करनी है। ही एक्टिवली प्रोमोटेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म एंड सेंट मिशंस अब्रॉड टू श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया, और उन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को जो है वो फैलाने की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिशें की और बाकायदा उन्होंने जो है वो मिशंस भेजे श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज़्म के हवाले से, क्योंकि वो बुद्धिज़्म रिलीजन को जो है वो प्रोमोट करना चाहते थे। ही ऑल्सो सेंड मिशंस टू द ग्रीक स्पीकिंग किंगडम्स टू द वेस्ट, और उन्होंने जो है वो ग्रीक स्पीकिंग किंगडम्स जो थी जो कि वेस्ट में मौजूद थी उनको भी जो है वो मिशंस भेजे ताकि वहाँ पर भी जो है बुद्धिज़्म की जो है वो तबलीग या स्प्रेड हो सके। विच हैड कॉव्ड अप अलेक्जेंडर द ग्रेट्स कॉन्क्वेस्ट बिटवीन दैम, और इसी जो है वो उसका नतीजा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आगे जाकर जो है वो इंडिया का जो है वो रुख किया था। तो क्योंकि यहाँ से जो है वो यहाँ से कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ था ग्रीक्स और इंडियंस के दरमियान। क्लास ठीक है। अच्छा क्लास, क्या वजह थी कि इन्होंने बुद्धिज़्म जो है वो मज़हब को अपनाना पसंद किया? क्योंकि बुद्धिज़्म की जो बेसिकली जो टीचिंग्स हैं वो इस बात को जो है वो इस बात की तालीम देती हैं कि तमाम जो है वो इंसान जो है वो बराबर हैं और उनको एक साथ जो है वो मिलजुल कर रहना चाहिए और सबको जो है वो एक जैसा समझना चाहिए, यानी पीस एंड हार्मनी जो है वो बेसिकली जो है वो बुद्धिज़्म की टीचिंग्स है। यही वजह है कि वो जब बहुत ज़्यादा जो है वो जंग और कत्लो गारतगरी से थक गए तो उन्हें इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीस महसूस हुआ इस मज़हब में। ठीक है क्लास, असल में बुद्धिज़्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध जो है वो उनका नाम था, और ये कहा जाता है कि ही वॉज अ प्रॉफिट, कि वो क्या थे, एक प्रॉफिट थे। लेकिन लेटर ऑन जो है वो उनकी टीचिंग्स जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती गई, उसमें न्यू जो है वो इनोवेशंस जो है वो शामिल होती गई, और आज जो हमारे पास जो मज़हब है वो बुद्धिज़्म के उससे जो है वो सामने आ गया। लेकिन जो है वो बेसिकली जो इसकी टीचिंग्स को अगर हम जो है वो देखेंगे तो हमें जो है ये इस्लाम से मिलती जुलती नज़र आएंगी। ठीक है, वल्लाहु अलम। लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, बुद्धिज़्म जो मज़हब है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पीस को जो है वो हाईलाइट किया गया, प्रमोट किया गया है। गवर्नमेंट एंड रूलर्स। अब यहाँ पर हम मौर्यन एम्पायर के हवाले से पढ़ेंगे कि उनके रूलर्स कैसे थे और वहाँ पर जो हुकूमत हुआ करती थी वो किस किस्म की हुआ करती थी। चंद्रगुप्ता वॉज अ पायनियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। चंद्रगुप्ता जो थे वो पायनियर थे इंडिया में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के। अब हमें इन दोनों वर्ड्स को समझने की ज़रूरत है। पायनियर किसी कहते हैं, पायनियर इसे कहते हैं जिसने किसी काम को पहली मर्तबा किया हो। ठीक है क्लास, और एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है हुकूमती इंतज़ाम, नज़्म नस्क और तमाम जो चीज़ों के इंतज़ाम को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले जो रूलर थे वो चंद्रगुप्ता थे जिन्होंने बाकायदा हुकूमती निज़ाम को कायम किया इंडिया में। चंद्रगुप्ता रिलाइड मच ऑन हिज मेन एडवाइज़र कौटिल्य हु रोट द अर्थशास्त्र विच वॉज अ बुक ऑफ रूल्स टू रन द एम्पायर।
चंद्रगुप्ता जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलाई किया करते थे, बहुत ज़्यादा भरोसा किया करते थे अपने एडवाइज़र पर, जिनका नाम था कौटिल्य। और कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कि किताब उसूलों की जो है वो कुछ उसूल उसके अंदर लिखे हुए थे, उनकी किताब थी कि किस तरीके से हुकूमत को जो है वो चलाया जाता है। कौटिल्य ने ये बुक लिखी थी। चंद्रगुप्ता ऑल्सो क्रिएटेड अ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पीपल हैविंग वेरियस जॉब्स दैट ही वुड सुपरवाइज। चंद्रगुप्ता ने जो है वो सबसे पहले जो है वो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में स्टार्ट की थी, ठीक है, और जो है वो उसमें जो है वो लोगों को जो है वो मुख्तलिफ जो है जॉब्स वगैरह मिली थी और वो खुद उनको जो है वो सुपरवाइज किया करता था। क्लास, ये ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो कि जिसमें जो है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो होते हैं और वो मिलकर जो है वो मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको रन करते हैं। टू कीप रूल अंडर हिज कंट्रोल, उसने जो है वो अपनी पूरी जो है वो हुकूमत को अपनी पूरी सल्तनत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू 4 प्रोविंसेस। इसने अपने एम्पायर को जो है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ईच विद देयर ओन रॉयल प्रिंस, और हर प्रोविंस का जो है वो एक रॉयल प्रिंस हुआ करता था। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू लोकल डिस्ट्रिक्ट्स, और प्रोविंसेस को जो है वो मजीद डिस्ट्रिक्ट्स, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, विच वर एडमिनिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स इंश्राइंड इन द अर्थशास्त्र बुक, ठीक है, और जो कि जो है वो उसका जो नज़्म उसको इस तरीके से चलाया जाता था, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलाया जाता था जो कि अर्थशास्त्र बुक में जो है वो जो रूल्स लिखे हुए थे उनके अकॉर्डिंग जो है वो चलाया जाता था। आ गई बात समझ में क्लास? यानी अपने जो किंगडम था उसको उसने जो है वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया, फिर फर्दर मोर जो है वो उन प्रोविंसेस को जो है वो उन्होंने लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और एक सेंट्रल जो है वो रूल्स के जो है वो अकॉर्डिंग उसके जो है वो हुकूमत चलाई जाती थी जो कि अर्थशास्त्र बुक में लिखे हुए थे। द अदर 2 रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर वर बिंदुसरा एंड अशोका, और मौर्यन एम्पायर के जो दूसरे 2 रूलर्स हैं वो बिंदुसरा और अशोका हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ चुके हैं ऊपर। बोथ ऑफ दीज रूलर्स वर डेसिडेंट्स ऑफ चंद्रगुप्ता, और ये जो दोनों रूलर्स हैं वो चंद्रगुप्ता की औलादों में से हैं। बिंदुसरा बीइंग हिज सन एंड अशोका बीइंग हिज ग्रैंडसन। बिंदुसरा तो चंद्रगुप्ता का अपना बेटा था जबकि अशोका जो है वो उनके ग्रैंडसन थे। वाइल अशोका वॉज इन रूल, और जब अशोका की हुकूमत थी, द एम्पायर वॉज एट इट्स हाइट, तो जो एम्पायर था, मॉडर्न एम्पायर था, उसके जो है वो पूरे अपने जो है वो उरूज पर थी ये एम्पायर। एज सून एज अशोका डाइड, और जैसे ही जो है वो अशोका की डेथ हुई, द कंट्री वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, तो जो भी सल्तनत थी वो जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई, एंड रिजल्टेड इन द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। और इसके बाद क्या हुआ? मौर्यन एम्पायर का जो है वो खात्मा हो गया, यानी ये जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो गई। रिलीजन, अच्छा हम इसमें जो है रिलीजन के हवाले से पढ़ेंगे कि यहाँ जो मॉडर्न एम्पायर जो था वहाँ पे जो है वो क्या रिलीजन जो है फॉलो किया जाता था। अशोका बिकेम एम्परर इन 269 BC, अशोका जो है वो 269 BC में जो है वो उन्होंने हुकूमत संभाली। ही फॉलोड अ हिंदू किंग चंद्रगुप्तास फुटस्टेप्स, और उन्होंने जो है वो बिल्कुल वैसे ही जो है वो हुकूमत करना स्टार्ट की जैसे कि चंद्रगुप्ता ने की थी। इन द बिगनिंग ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर थ्रू वॉरफेयर, और शुरू में उन्होंने जो है वो एक्सपेंड करने की कोशिश की, अपने सल्तनत को वसी करने की कोशिश की जंगो जिदल के ज़रिए, विच कॉस्ट किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, जिसने जो है वो जिसका नतीजा ये निकला कि हज़ारों की तादाद में मासूम लोग जो है वो कत्ल हुए और जो है वो उनको नुकसान उठाना पड़ा। लेटर ही रियलाइज दैट ब्लडशेड वाज नॉट नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन, और बाद में उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि खून खराबा ज़रूरी नहीं है सल्तनत को वसी करने के लिए। एवेंचुअली यानी एट द एंड he began to study Buddhism and concluded that his empire was going to follow the teachings of peace and harmony to all beings and nirvana। ठीक है क्लास, उन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म को पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने इस बात पे जो है वो उन्हें इस बात का नतीजा ये अख़ज़ किया कि इनकी जो एम्पायर है उनको जो है वो टीचिंग्स फॉलो करनी चाहिए बुद्धिज़्म रिलीजन की। ठीक है, तो अच्छा बुद्धिज़्म रिलीजन में जो है जो टीचिंग्स होती हैं पीस और हार्मनी की, वो निर्वाणा कहलाती हैं। प्रैक्टिसिंग दिस नॉन वायलेंट एंड पीसफुल रिलीजन थ्रू आउट द एम्पायर ब्रॉट मैनी पीपल अंडर द रूल विदाउट यूज़ ऑफ
वायलेंस। अब जब उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो किया और नॉन वायलेंट पॉलिसी जब अपनाई, यानी अदम तशद्दुद, यानी बग़ैर किसी मतलब तशद्दुद के और जंगो जदल के उन्होंने जो है वो सिंपल हुकूमत करना जो है वो स्टार्ट की, तो इसकी वजह से जो है वो, क्योंकि हुकूमत बहुत ज़्यादा जो है वो पुरसुकून अंदाज में हो रही थी, तो बहुत से लोग खुद बखुद मौर्यन एम्पायर में जो है वो दाखिल हो गए। This helped the Mauryan Empire to grow and to reach to the height that it reached as an empire। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो यही वजह थी कि जिसकी वजह से मौर्यन एम्पायर अपनी पूरी हाइट पर पहुंच चुकी थी, यानी जंगो जदल से जो है वो इतना और कत्लो गारत गरी से इतनी जो है वो सल्तनत वसी नहीं हुई जितनी जो है वो बुद्धिज़्म टीचिंग्स को फॉलो करने से हुई। अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिलीजियस टेम्पल जो है वो उसकी पिक मौजूद है, जो कि अशोका के टाइम का जो है वो अभी तक मौजूद है, इसकी पिक हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एक स्कल्पचर की जो है वो पिक मौजूद है, जो कि गंटर जो है वो कहलाता है, और ये गवर्नमेंट म्यूज़ियम में जो है वो इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ठीक है क्लास, अच्छा क्लास पेज नंबर 6 पर आ जाइए, कल्चर एंड सोसाइटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो मौर्यन एम्पायर था वहाँ पर जो कल्चर और सोसाइटी थी वहाँ की वो किस किस्म की हुआ करती थी। द मौर्यन सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ 7 कास्ट, नेमली मौर्यन सोसाइटी जो है वो असल में वहाँ पर जो है वो जितनी जो वहाँ पे लोग रहते थे इनको 7 कास्ट में डिवाइड कर दिया गया था, नेमली फिलोसफर्स, फार्मर्स, सोल्जर्स, हर्ट्समैन, आर्टिसंस, मैजिस्ट्रेट्स एंड काउंसलर्स। ठीक है क्लास, अच्छा, अब इसमें जो है वो उन 7 कास्ट में सबसे पहले होते थे फिलोसफर्स, फिर फार्मर्स आते थे, फिर सोल्जर्स आते थे, फिर हर्ट्समैन। हर्ट्समैन कहते हैं क्लास जो मवेशी चराने वाले होते हैं, जिन्हें हम चरवाहे कहते हैं वो। फिर आर्टिसंस यानी हुनरमंद लोग, यानी जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो काम अंजाम देते हैं, हुनर अंजाम देते हैं। मैजिस्ट्रेट्स यानी जो इंसाफ वगैरह करते हैं, और काउंसलर्स वगैरह जो कि लोकली जो है वो रन करते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को। चितरवर्णा सिस्टम कंटिन्यू टू गवर्न द सोसाइटी, और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो एक चितरवर्णा सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता था सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। ठीक है क्लास, नॉट एम्पायर, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए जो ये लोग सिस्टम यूज़ करते थे वो चितरवर्णा सिस्टम था। The urban way of life developed and the craftsmen enjoyed a high place in the society। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो अर्बन लाइफ जो है वो डेवलप हो चुकी थी, यानी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था, और जो क्राफ्ट्समैन थे यानी जो आर्टिसंस वगैरह थे वो उनको सोसाइटी में आला दर्जा दिया जाता था। टीचिंग कंटिन्यू टू बी द मेन जॉब फॉर ब्राह्मण्स। ठीक है, यहाँ पर जो है वो जो कास्ट जो हिंदुओं की जो कास्ट है उसमें हमारे पास जो है वो 4 कास्ट मौजूद है, ब्राह्मण, काश्यत्रियास, वेशास और शूद्रास। तो ये जो ब्राह्मण्स जो हैं उनको असल में हिंदू सोसाइटी में जो है वो सबसे जो है वो हाई प्लेस जो है वो हासिल है। तो उस मतलब मौर्यन एम्पायर में भी जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्हीं को जो है वो टीचिंग की जो है वो जॉब दी गई थी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर डेवलप्ड एज इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इसके अलावा जो है वो बुद्धिस्ट जो लोग हुआ करते थे उनके जो मतलब मंदिर वगैरह हुआ करते थे वो जो है वो मेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करती थी उस ज़माने की। टैक्सिला, उज्जैनी एंड वाराणसी वर फेमस एजुकेशनल सेंटर्स। इसके अलावा टैक्सिला, उज्जैनी और वाराणसी ये जो प्लेसेस थे ये फेमस एजुकेशनल सेंटर्स हुआ करते थे, यानी इनको जो है वो तालीम और तरबियत के हवाले से बहुत अहमियत हासिल थी। टेक्निकल एजुकेशन वॉज जनरली प्रोवाइडेड थ्रू गर्ल्स। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बच्चों को जनरली जो है वो गिल्ड्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती थी। अब क्लास के गिल्ड्स क्या होती थी? गिल्ड्स उस ज़माने में ये होती थी कि ताजरों जो ट्रेड करते हैं जो लोग, उनकी जो है वो एक तंजीम या उनका एक जो है वो ग्रुप होता था, तो उनको बाकायदा जो है वो तैयार किया जाता था ताकि वो जो है वो बच्चों को जो है टेक्निकल एजुकेशन जो है वो दे सकें। वेयर पीपल्स लर्न द क्राफ्ट फ्रॉम द अर्ली एज, और छोटी छोटी उम्र में जो है वो बच्चों को वहाँ पर जो है वो तालीम हासिल करने भेज दिया जाता था गिल्ड्स में, ताकि वो उन ताजरों से बराह रास्त बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीख सकें। द जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज द नॉर्म इन द डोमेस्टिक लाइफ, और इसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो चला करता था। अ मैरिड वुमेन हैड हर ओन प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ ब्राइड गिफ्ट, स्त्री धन।
ठीक है। एक जो शादीशुदा औरत होती थी उसकी जो है वो अपनी जो प्रॉपर्टी होती थी वो ब्राइड गिफ्ट के फॉर्म में होती थी, यानी जो उसको डाउरी या जहेज वगैरह जो भी दिया जाता था तो वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी। द विडोज हैड गिवन रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। इसके अलावा जो विडोज हुआ करती थी उनको जो है वो सोसाइटी में, यानी जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाया करती थी, उनको सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। ऑल स्त्री धन, ब्राइड गिफ्ट एंड ज्वेलरी बिलोंग्स टू हर। जितने भी मतलब जो भी एक मैरिड वुमेन जो भी अपने मतलब उसका जो भी जहेज़ वगैरह हुआ करता था वो सब उससे बिलोंग करता था, यानी उस पर जो है वो उसके जो है वो शौहर का और दूसरे लोगों का कोई हक नहीं होता था। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन वर सिवियरली डील्ड विद, ठीक है। और जो ख़वातीन के साथ अगर कोई जो है वो ज़्यादती होती थी तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती से जो है वो डील किया जाता था, यानी उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया जाता था। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो है वो इकोनॉमी के हवाले से जो है वो मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी। The Mauryan period, particularly during the reign of Ashoka, experienced an extensive period of peace. जो मौर्यन पीरियड था, खुसूसन जो दौर था किंग अशोका का, उन्होंने जो है वो एक बहुत पुरसुकून जो है वो दौर जो है वो एक्सपीरियंस हुआ था। पीस एनकरेज प्रॉस्पेरिटी एंड द गवर्नमेंट एक्टिवली प्रोमोटेड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, ठीक है। जब वहाँ पर पूरा मतलब हुकूमत ने पूरा जो है वो हर जगह पीस कायम हो चुका था तो उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर और ट्रेड की तरफ तवज्जो दी, क्योंकि इससे पहले जो रूलर्स थे और ख़ुद किंग अशोका उसने जब तक वारफेयर रिनाउंस नहीं किया था तो उनकी सारी जो मतलब जो वसाइल हुआ करते थे वो जंग वगैरह में खर्च हुआ करते थे। लेकिन जब वो उन्होंने इससे जो है वो मतलब अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद अब जो सारे रिसोर्सेज थे उन्होंने किस में यूज़ किए, ट्रेड और जो है वो एग्रीकल्चर पे यूज़ किए। ट्रेड रूट्स क्रिएटेड वर सिक्योर्ड विच मेड लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्स एंड ट्रेडिंग ईजियर। ट्रेड रूट्स बनाए गए ताकि जो है वो दूर दराज इलाकों से बआसानी जो है वो तिजारत की जा सके। द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रोज ड्यूरिंग मौर्यन रूल। और इसके अलावा जो है वो जो आर्कियोलॉजिकल हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं, यानी जो कदीम उस ज़माने की हमें जो चीज़ें मिली हैं वो हमें इस बात का जो है वो पता देती हैं कि उस दौरान भी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो चुकी थी, डेवलप हो चुकी थी। आयरन टूल्स आर वाइडली यूज्ड एंड हेल्प द रिक्लेमेशन ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग, ठीक है। उस वक्त जो है वो लोहे के जो औजार वगैरह थे वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे और इसके अलावा जो है वो उनकी मदद से जो है वो लैंड को जो है वो काबिले काश्त बनाया जाता था। एंड लेड टू द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फॉर फार्मर्स, जिससे क्या होता था कि जो फार्मर्स होते थे उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता था। मेटल कॉइनेज बिकेम मोर वाइड स्प्रेड एंड प्रोमोटेड ट्रेड, और इसके अलावा जो है मेटल के जो सिक्के थे वो बहुत ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड थे, यानी हर जगह फैले हुए थे और उससे ट्रेड में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी। पलितपुरा, द मॉडर्न कैपिटल वॉज अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव सिटी, और जो पलितपुरा था वो मॉडर्न एम्पायर का असल में कैपिटल था, वो एक बहुत बड़ा एक बहुत इम्प्रेसिव सिटी था। इन एडिशन रिलीजियस वैल्यूज़ वर प्रोमोटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंस्क्राइबिंग ऑन रॉक्स, और इसके अलावा जो है रिलीजियस जो वैल्यूज़ थी, यानी जो भी उनकी जो टीचिंग्स वगैरह थी उसको प्रमोट किया जाता था, यानी चट्टानों पर जो है वो इंस्क्राइब करके, इंस्क्राइब बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को जब हम जो है वो तराशते हैं तो चट्टानों पर जो है वो उनके जो भी टीचिंग्स होती थी उनको जो है वो तराश के लिखा जाता था, जिससे रिलीजियस जो वैल्यूज़ होते थे वो प्रोमोट हुआ करते थे। डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मौर्यन एम्पायर का एंड कैसे हुआ, किस तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ। द डेथ ऑफ अशोका वॉज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर, और जब किंग अशोका की डेथ हुई तो ये समझ लें कि यहाँ से बिगिनिंग हो चुकी थी मौर्यन एम्पायर के एंड की, यानी इसका जो है वो खात्मा यहाँ से शुरू हो चुका था। इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट वर लूजली पार्ट ऑफ द एम्पायर स्प्लिट एंड एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल। अब जो छोटी रियासतों को जो है वो जंगों के ज़रिए या फिर जो है वो उनके रूलर को किल करके या फिर उनके ऊपर जो है वो उनसे कोई एग्रीमेंट वगैरह करके उनको मौर्यन एम्पायर का हिस्सा बनाया गया था, उन्होंने इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। जब क्योंकि किंग अशोका की जब डेथ हो गई, क्योंकि और किंग अशोका ने इतनी शानदार हुकूमत की थी कि वो उनके साथ बहुत जो है वो मुतमईन तरीके से मतलब रहते थे। जब उनकी डेथ हो गई तो अब उनको जो है ये एहसास होने लगा कि वो मौर्यन एम्पायर का हिस्सा है, उनकी जो है वो इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, तो इन्होंने जो है वो अब जो है वो अपनी स्टेट्स को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया। अब वो अलग अलग होने लगे, तो इस तरीके से मौर्यन एम्पायर क्या होने लगी, टूटने लगी। The main empire that arose from the downfall of the Mauryan Empire was the Andhra dynasty, और उसके बाद जो मेन एम्पायर जो कि
मौर्यन एम्पायर के बाद आई वो आंध्र डायनेस्टी कहलाती है. द रीजन दैट दे सक्सीडेड अमंग द अदर्स वाज बिकॉज ऑफ इट्स जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन विच हेल्प्ड टू डेवलप इट्स ट्रेड लिंक्स विद रोम एंड साउथ ईस्ट एशिया. और क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से ये आंध्र डायनेस्टी जो है वो मौर्यन एम्पायर्स को जो है वो ख़त्म करने में कामयाब हुई. वो ये थी कि वो जिस इलाके में रहते थे उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन थी यानी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी ट्रेड वगैरह के लिए. तो इन्होंने बआसानी जो है वो क्या किया, मौर्यन एम्पायर को जो है वो ख़त्म करके अपनी हुकूमत यहाँ पर कायम कर ली. ठीक है. अच्छा, और वो बेसिकली ईजिली जो है वो ट्रेड करते थे रोम और साउथ ईस्ट एशिया से, आंध्र डायनेस्टी के लोग. और इस तरीके से मौर्यन एम्पायर का क्या हो गया, खात्मा हो गया. क्लास नाउ कम टू पेज नंबर 7. क्लास पेज नंबर 7 में हमारे पास जो है वो गुप्ता एम्पायर है. सबसे पहले आप जो है वो इसका मैप देख लें, मैप ऑफ गुप्ता एम्पायर. क्लास यहाँ पर जितना एरिया जो है वो ब्लू से हाईलाइट हुआ हुआ, यहाँ पर जो है वो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो उन्होंने रूल किया था. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इंडिया का जो है वो अच्छा खासा इलाका आ गया है. बे ऑफ बंगाल से ऊपर वाला जो पूरा इलाका है, और इसके अलावा जो हमारे पास अरेबियन जो सी है उसके जो ऊपर वाला जो इलाका यानी उससे जो बाउंड्रीज टच हो रही हैं, वो पूरा एरिया जो है वो गुप्ता एम्पायर्स के रूल में था. ठीक है क्लास. पहले हम इनके हवाले से पढ़ते हैं. The Gupta Empire. For about 5 centuries after the fall of the Mauryan Empire, the Indian people remained under the rule of small city states. ठीक है क्लास. ये जो गुप्ता एम्पायर जो थे वो तकरीबन जो है वो 5 सेंचुरीज़ बाद मौर्यन एम्पायर के फॉल होने के, जैसे अभी हमने पीछे मौर्यन एम्पायर के हवाले से पढ़ा, तो जब मौर्यन एम्पायर का एंड हो गया उसके तकरीबन 5 सेंचुरीज यानी 500 साल बाद तक भी जो है वो लोग जो है वो स्मॉल सिटी स्टेट्स के तौर पर जो है वो रह रहे थे. यानी कोई सेंट्रल हुकूमत नहीं थी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जो स्मॉल स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई थी, तो वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी और किसी सेंट्रल हुकूमत के अंडर नहीं थी. देन अ न्यू लीडर एमर्ज चंद्रगुप्ता टू हु बिगैन टू यूनाइट इंडिया. और तभी जो है वो एक नए रूलर उठे, एक नए लीडर उठे जिनका नाम था चंद्रगुप्ता टू, जिन्होंने जो है वो दोबारा से इंडिया को यूनाइट करना शुरू किया. ठीक है. जैसे आप लोगों के सामने पूरा बैकग्राउंड मौजूद है कि स्मॉल स्टेट्स जो थी वो बहुत सारी वो अलग जो थी, तो उनको जो है वो यूनाइट करके एक जो है वो सेंट्रल हुकूमत कायम करने की कोशिश की चंद्रगुप्ता टू ने. अच्छा, चंद्रगुप्ता टू इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे पास जो है वो मौर्यन एम्पायर में भी उनके जो फाउंडर थे उनका नाम भी चंद्रगुप्ता था. तो ये चंद्रगुप्ता टू से आपको समझ आएगा कि ये जो हैं जिनका चंद्रगुप्ता टू जो हैं ये असल में गुप्ता एम्पायर वाले जो हैं वो गुप्ता एम्पायर के फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्ता हैं. चंद्रगुप्ता टू सेट अप हिज कैपिटल इन द ओल्ड किंगडम ऑफ मगधा. चंद्रगुप्ता टू ने जो है वो उन्होंने अपना जो है वो कैपिटल जो है वो किंगडम ऑफ मगधा को बनाया. अंडर द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड हिज डिसिडेंट्स द गुप्ता एम्पायर फ्लोरिश्ड. ठीक है. और इसके बाद जो है वो चंद्रगुप्ता टू के जितने मतलब औलादे वगैरह थी, ये तो उनकी मदद से जो गुप्ता एम्पायर जो उसने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की. दिस पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज ग्रेट एडवांसेस इन आर्ट एंड साइंसेज वर मेड. और ये जो क्या पार्ट या ये जो दौर कहलाता है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें जो है वो आर्ट और साइंस वगैरह जो है वो बहुत फ्लोरिश हुआ और इसने जो है वो यहाँ पर यानी इस रीजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की. किसके रीन में यानी किसके दौर में, गुप्ता एम्पायर के दौर में, या आप जो है वो ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्ता टू ने जिस एम्पायर की बुनियाद डाली थी. अंडर द रूल ऑफ गुप्ता किंग्स द पीपल रिटर्न टू देयर हिंदू रूट्स एंड हिंदुइज्म बिकेम द रिलीजन ऑफ द स्टेट. और जैसे ही जो है वो गुप्ता किंग्स जो है वो उन्होंने हुकूमत कायम की, तो जो लोग थे वो अपने जो है वो जिन्होंने जो पहले हिंदू हुआ करते थे उन्होंने जो है वो मौर्यन एम्पायर के दरमियान यानी अशोका के रीन के दरमियान जो है बुद्धिज़्म को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था. अब वो दोबारा किस में कन्वर्ट होने लगे, यानी अपने जो है वो प्रीवियस रिलीजन की तरफ दोबारा जाने लगे, यानी हिंदुइज्म को दोबारा एक्सेप्ट करने लगे. Gupta kings lowered the tax and encouraged freedom and personal development.
इसके अलावा जो गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने टैक्सेस को कम कर दिया, इसके अलावा उन्होंने इनकरेज किया फ्रीडम यानी आज़ादी को, पर्सनल डेवलपमेंट को, यानी उन्होंने पूरे मौके जो है वो फराहम किए लोगों को कि वो तरक्की कर सकें। As a result, the Gupta Empire became the center of arts, learning, science and technology। और इसका नतीजा ये निकला कि गुप्ता एम्पायर जो है वो अब जो है वो सेंटर बन चुका था, यानी मरकज़ बन चुका था आर्ट का, लर्निंग का, यानी मुख्तलिफ चीज़ें सीखने का, और साइंस का, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का, और एस्ट्रोनॉमी जो है वो और मैथ्स भी जो है वो ज़माने में जो वो डेवलप हो गई थी, यानी हिसाब किताब करने के लिए। और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं कि हमारे पास जो आसमान यानी फलकियाती जो जितनी चीज़ें होती हैं उसके इल्म को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता II द गुप्ता एम्पायर बिगैन टू फॉल अपार्ट। और फिर जब चंद्रगुप्ता II की जब डेथ हुई तो जो गुप्ता एम्पायर था वो जो है वो मतलब डाउनफॉल उसका शुरू हो गया। लेटर ऑन बाद में द सक्सीडिंग रूलर्स वर नॉट एज अफेक्टेड इन रूलिंग द गवर्नमेंट एज देयर प्रेडिसेसर्स वर। और जो है बाद में जो रूलर्स आए उनके अंदर इतनी अहलियत नहीं थी जैसे उनके आबाओ अजदाद के अंदर थी कि वो जो है वो रूल कर सके इतने बड़े एम्पायर को। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट बिकेम वीकर एंड द एम्पायर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स। जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और जो एम्पायर जो है वो इन्वेडर्स ने जो है वो एम्पायर का खात्मा कर दिया। इन्वेडर्स कहते हैं हमला आवरों को, मुख्तलिफ जगहों से हमला आवर जो है वो क्योंकि आए और उन्होंने इसका खात्मा कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वीक होती है तो फिर जो है वो बाहर वालों को मौका मिल जाता है कि वो वहाँ पर जो है वो हमला करके उस जगह को फतह कर ले। अच्छा क्लास, यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइमलाइन गिवन है, पेज नंबर 8 पर आ जाइए। गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी 320 AD में, ठीक है। अच्छा, अब जो ये हमारे पास गुप्ता एम्पायर है इनके हवाले से जो हमने पढ़ा, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न एम्पायर के 500 साल बाद जो है वो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई थी। यानी ये जो डायनेस्टी आई थी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद आई थी 320 AD। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 320 साल बाद जो है वो ये डायनेस्टी जो है वो उसने इंडिया पर हुकूमत की थी। और इस दौरान जितने भी इंडियन स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स के तौर पर उन्होंने जो है वो 500 साल तक जो है वो यहाँ का जो है वो निज़ाम चलता रहा। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो 320 AD में गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट हुई। फिर चंद्रगुप्ता I का जो है चंद्रगुप्ता II, असल में यहाँ पे बेसिकली मिस्टेक हो गई है, ये चंद्रगुप्ता II लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इनका दौर जो चला वो 321 से 354 BC तक जो है वो चला। फिर उसके बाद जो है वो 355 AD चंद्रगुप्ता I जब उनकी जो है वो डेथ हो गई, फिर उसके बाद 350 AD में गुप्ता डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई। यानी इसके सिर्फ एक रूलर आए जिनका नाम था चंद्रगुप्ता II। यहाँ पर ये जो चंद्रगुप्ता I लिखा हुआ है ये असल में बाय मिस्टेक है, ये चंद्रगुप्ता II की टाइमलाइन है। Thus it can be said that the ancient world started from 500 BCE to 500 CE. It observed many rulers and dynasties of which the most famous are the Mauryans and Guptas in Asia। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टार्ट हुआ था वो 500 BCE से जो है वो 500 CE तक जो है वो चला था। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले से लेकर 500 साल बाद तक। इट ऑब्जर्व मैनी रूलर्स एंड डायनेस्टीज ऑफ विच द मोस्ट फेमस आर द मॉडर्न्स एंड द गुप्तास इन एशिया। और इसने जो बहुत सारे रूलर्स को जो है वो ऑब्जर्व किया जिनमें जो है वो मौर्यन और गुप्तास जो है वो एशिया में जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। द मौर्यन एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स एंड द रूल ऑफ अशोका द ग्रेट। और मौर्यन एम्पायर जो है वो जाना जाता है अपने बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की वजह से और अशोका के रूल की वजह से, जो अशोका द ग्रेट किंग जो कहलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो है वो मशहूर हैं। द वर्ल्ड हैज़ रियली सीन सच ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर। और इस दुनिया ने जो है वो बहुत ही कम जो है वो इस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर वॉरियर्स को देखा है। फॉलोइंग अशोक द ग्रेट इंडिया एक्सपीरियंस द रूल ऑफ द गुप्तास। और इसके बाद जो है वो जब अशोका के बाद जो है वो गुप्तास का जो है वो दौर शुरू हुआ
द लास्ट स्किल्ड लीडर फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर वॉज चंद्रगुप्ता टू, और यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट स्किल्ड लीडर जो गुप्ता एम्पायर के थे वो चंद्रगुप्ता टू थे. आफ्टर हिज डिमाइज, डिमाइज कहते हैं डेथ को, उसकी डेथ के बाद देयर वॉज नो वन टू टेक केयर ऑफ द लैंड एंड इंडिया एक्सपीरियंस अटैक्स ऑफ फॉरेन वॉरियर्स एंड इन्वेडर्स इंक्लूडिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट. और उनकी मौत के बाद जो है वो इंडिया की जो लैंड थी उसकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं था, और उसके बाद जो मुसलसल बाहर के हमला आवर जो है वो यहाँ पर हमले करते रहे, और इनमें जो है वो एक सबसे जो मशहूर इन्वेडर थे वो ग्रीक इन्वेडर अलेक्जेंडर द ग्रेट थे. इनको हम सिकंदर आज़म के नाम से जानते हैं. ठीक है क्लास, इन्होंने ये जो है इन्होंने भी हिंदुस्तान पर हमला किया था, और वैसे ये ग्रीक इन्वेडर थे, और इन्होंने जो है वो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कंक्वायर कर लिया था. अच्छा क्लास, हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर इन डैश BCE 320. Chandragupta Maurya's grandson was dash Ashoka. The Mauryan Empire lasted about 321 to 185 BCE. ठीक है क्लास. Number 4, Ashoka became king at around 269 BC. 269 BC यहाँ पे हमने लिखा है. Number 5, Ashoka's empire included much of dash India, southern India. Okay class. ओके क्लास, नेक्स्ट टाइम जो है वो आपसे मुलाकात होगी चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में. अल्लाह हाफिज़.